as soon as we observe the lectures, we will practice all the things. Okay. So yes, the last class we had discussed about constant pointer. So constant pointer का मतलब क्या है that the address given to the pointer becomes fixed. So यहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा था कि जो कांस्टेंट पॉइंटर हमने बनाया था इंटीजर एस्ट्रिक्स कॉन्स्ट p इक्वल टू एम्परसेंड a, तो p के पास जो एम्परसेंड a करके जो एड्रेस आया है a का, दैट बिकम्स कांस्टेंट. सो p इक्वल टू एम्परसेंड b जो लिख रहे हैं वो अलाउड नहीं है. So it cannot get an address of another variable. Once it is being assigned a address, it cannot be changed. So this is known as constant pointer. So एक इसका छोटा सा एग्जांपल है, ये देखिए एक्चुअली इंटरव्यूज में पूछते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा. इससे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कांस्टेंट पॉइंटर का एरेज. तो एरे नेम होता है, द एरे नेम इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट पॉइंटर which points towards the first location of the array, and that address which the array name has cannot be changed because it is a constant pointer. So array itself is a constant pointer which points towards the first location of the array. So I will request everyone to get ready with the note copy, put date, subject, name, roll number section. So throughout the lecture, if you have any problem, any doubts, please ask me immediately so that I can resolve your queries. So next we will move on to pointer to constant. अब last time अपन ने देखा था constant pointer. Now we will see about pointer to constant. So constant pointer में हमने क्या देखा था that the address which is given to the pointer becomes fixed. So the pointer which is pointing towards an address becomes fixed. So that means the pointer के अंदर में जो address दिया गया है वो उसको change नहीं कर सकते. लेकिन पॉइंटर टू ए कांस्टेंट का क्या मतलब होगा कि द पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मेमोरी स्पेस, दैट पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस कैनॉट बी चेंज्ड, दैट द कंटेंट्स ऑफ दैट मेमोरी स्पेस कैनॉट बी चेंज्ड यूजिंग द पॉइंटर. लास्ट एग्जांपल में आपने क्या देखा था कांस्टेंट पॉइंटर में कि पॉइंटर का हेल्प लेके, जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे मैं कर्सर अपना लेके गया हूँ, एस्ट्रिक्स p इक्वल टू 100 लिखा है. दैट मीन जहां वो पॉइंट कर रहा है वहां पे वैल्यू 100 पुट कर रहा है. इससे मतलब कहाँ पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर p a की तरफ पॉइंट कर रहा है क्योंकि एक एड्रेस है पॉइंटर p के पास. सो इट इज चेंजिंग द वैल्यू इनसाइड द a, इनसाइड a. सो एस्ट्रिक्स p इक्वल टू 100 करने से क्या होगा, a के अंदर का वैल्यू जो है वो 100 हो जाएगा. लेकिन जब हम पॉइंटर टू कांस्टेंट बनाते हैं, when we create pointer to constant, what happens is that using this pointer we cannot change the value at address. We cannot change the value at address. तो जिस एड्रेस की तरफ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस के अंदर जाके वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता. तो दिस इज नोन एज पॉइंटर टू कांस्टेंट. तो पॉइंटर टू कांस्टेंट बनाने के लिए कॉमन सिंटैक्स क्या है, कॉन्स्ट डेटा टाइप asterisk pointer name equal to ampersand variable name. So here what we are doing is we are using the const keyword before the declaration of the pointer. So when const keyword is used before the declaration of the pointer, then we are creating pointer to a constant. Okay. So const data type asterisk pointer name. So here pointer becomes a pointer to a constant, or as soon as we create a constant we have to assign it to a value. ये रूल है, मैंडेटरी है. So as soon as we create a constant pointer हमको equal to करके एड्रेस देना पड़ेगा. We have to give an address to it. So address of the variable has to be given जहाँ पे ये pointer point करने लगेगा. ठीक. So अभी जो पॉइंटर जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है, इस पॉइंटर का हेल्प लेके आप उस जगह के अंदर के कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते. तो लेट अस सी द एग्जांपल फर्दर. const int asterisk q equal to ampersand b लिखा है. So here we are assigning the address of the variable b inside q. So pointer q is pointing towards b. पॉइंटर q क्या कर रहा है, b की तरफ पॉइंट कर रहा है. इससे मतलब b के एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है. अब q इक्वल टू एम्परसेंड a, देखिए यहाँ पे एम्परसेंड b जो लिखा है दैट इज एड्रेस ऑफ b. b के अंदर क्या रखा हुआ है, देखिए 20 रखा हुआ है. ठीक. सो q का हेल्प लेके हम b के अंदर का जो कंटेंट है उस पर एक्सेस कर सकते हैं.
यूजिंग डीरेफरेंसिंग, मतलब एस्ट्रिक्स क्यू करके हम लोग उसको डीरेफरेंस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे q इक्वल टू एम्परसेंड a लिखा है, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर रीअसाइनिंग द एड्रेस, मतलब q के पास जो b का एड्रेस था, अभी q के पास किसका एड्रेस आ गया, a का। सो वी हैव चेंज्ड द कंटेंट ऑफ द पॉइंटर। ये हम लोग कांस्टेंट पॉइंटर में नहीं कर सकते, जो लास्ट एग्जांपल अपन ने देखा था। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटर के अंदर का जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो q के अंदर में पहले b का एड्रेस था, अभी q के अंदर में a का एड्रेस है, ठीक है। सो a का एड्रेस आ गया। अब एस्ट्रिक्स ऑफ q लिखने से क्या मिलेगा, a के कंटेंट, a का कंटेंट क्या है 10, 10 जो है a का कंटेंट है वो आपको मिलेगा। उसके बाद q इक्वल टू एम्परसेंट बी, एम्परसेंट बी फिर से हम लोग ने क्या किया, पॉइंटर जो q पॉइंटर है उसको हम लोग ने b का एड्रेस दे दिया, b का एड्रेस दिया मतलब वो b की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब ये वेरिएबल b की तरफ पॉइंट करेगा। अब एस्ट्रिक्स क्यू देखिए, सी आउट देखिए स्टेटमेंट, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है सी आउट। एस्ट्रिक्स क्यू को हम लोग सी आउट करा के देख रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू, वी आर व्यूइंग द वैल्यू, वी कैन व्यू द वैल्यू। एस्ट्रिक्स क्यू करने से क्या मिलेगा, जो बी के अंदर का वैल्यू है, वैल्यू एट एड्रेस, क्यू कहाँ पॉइंट कर रहा है बी की तरफ, एस्ट्रिक्स क्यू बोलने से बी के अंदर का वैल्यू, बी के अंदर का वैल्यू क्या है 20, इससे आपको 20 आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि जहां पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके अंदर का वैल्यू को चेंज कर दें तो नहीं कर पाएंगे, एस्ट्रिक्स क्यू इक्वल टू 200 नहीं होगा। एस्ट्रिक्स क्यू इक्वल टू 200 का मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर का वैल्यू मुझे 200 करना है, तो बी के अंदर का वैल्यू वो 200 नहीं कर पाएगा एस्ट्रिक्स क्यू का हेल्प लेके। इससे मतलब दिस इज ए पॉइंटर टू कांस्टेंट। सो पॉइंटर टू कांस्टेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है कि उस पॉइंटर का हेल्प लेके आप डी रेफरेंस करके उस जगह के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, डी रेफरेंस करके देख सकते हैं, वी कैन व्यू द वैल्यू बट वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू, क्लियर। सो दिस इज पॉइंटर टू कांस्टेंट, ठीक है। सर हाँ सर हाँ बोलिए। सर ये चीज समझ नहीं आई कि जैसे आप बोले कि बी की जगह हम लोगों ने कांस्टेंट पॉइंटर टू ए किया, और हाँ फिर जो ये वाली हमने लाइन की है हैशटैग क्यू इज इक्वल्स टू 200, सर हम लोग सर वही चीज तो किए हैं वापस, वही तो एड्रेस तो चेंज किए हैं, तो 200 क्यों नहीं हो रहा फिर से? एक सेकंड। हाँ यस हेलो, सर। हाँ नमस्कार। हाँ। अच्छा, मैम हैज ज्वाइंड द मीटिंग, वी विल पॉज अ लिटिल बिट नाउ, ठीक है। So here we will observe that hopefully everybody is able to see the coding window. यस सर। हाँ ठीक। सो ये कोडिंग विंडो में जो आप कोड देख रहे हैं उसको आप टाइप करते जाएं साथ साथ, तो प्रूफ भी हो जाएगा। So here what we are doing here, we have created one variable a whose value is 10, another variable b whose value is 20, another pointer p. Here pointer p that we have created, इसमें p1 बनाता हूँ। Pointer p1 is a pointer variable। अब देखिए मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ कीवर्ड उसको ध्यान रखिएगा। पॉइंटर p हियर इज ए पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल का क्या मतलब है कि p1 को मैं a का एड्रेस दे सकता हूँ, p1 को मैं b का भी एड्रेस दे सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। p1 इक्वल टू एम्परसेंड a, p1 इक्वल टू एम्परसेंड b। ये आप अगर हम कंपाइल करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, तो कंपाइल करेंगे तो कंपाइल्स फाइन है ना, कोई एक वार्निंग आ रहा है p1 इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर बीइंग यूज्ड, वो तो ठीक है, हमने असाइन कर दिया वैल्यू लेकिन एरर नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। तो p1 इक्वल टू एम्परसेंड a, p1 इक्वल टू एम्परसेंड b का मतलब क्या हुआ, हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट p1 is getting the address of a, here is in this particular statement p1 is getting the address of b, so there is no problem at all because जितने बार चाहे हम p1 के अंदर में एड्रेसेस को चेंज कर सकते हैं, p1 के अंदर जो एड्रेस है उसको हम जितने भी बार चाहे चेंज करके देख सकते हैं। अब अगर मैंने कांस्टेंट पॉइंटर बनाया, अब देखिए फर्क कहाँ पे आ जाएगा, कॉन्स्ट कीवर्ड जब लग जाता है, जैसे p2 कांस्टेंट पॉइंटर बनाया इक्वल टू, अब जैसे कांस्टेंट बनाते हैं उसको तुरंत के तुरंत एक एड्रेस देना जरूरी है, तो हियर वी हैव असाइंड एन एड्रेस। अब नाउ p2 इज नॉट ए वेरिएबल, है ना, p2 जो है वो पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, वो एक कांस्टेंट पॉइंटर है।
कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब क्या होगा, P2 के अंदर जो एड्रेस ऑफ ए आया है उसको आप अभी चेंज नहीं कर सकते। अब मैं P2 इक्वल टू एम्परसेंड बी अगर लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो डिफरेंस ऑब्जर्व करिए, पॉइंटर वेरिएबल P1 है, उसमें एड्रेस ऑफ ए गया, एड्रेस ऑफ बी गया, डजेंट मैटर, वो ठीक है क्योंकि वो वेरिएबल है। लेकिन जैसे ही P2 को हमने बनाया कांस्टेंट, तो P2 के अंदर जो एड्रेस ऑफ ए गया है अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको एड्रेस ऑफ बी नहीं कर सकते, मतलब P2 के अंदर का वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए अब इसको कंपाइल में करूंगा तो देखिए एरर आएगा, तो देयर इज एन एरर, एरर आया कैनॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। देखिए एरर दिख रहा है सबको, कैनॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस एरर इज हैज अकर्ड बिकॉज पॉइंटर P2 इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। तो कांस्टेंट पॉइंटर मतलब एक बार जो एड्रेस P2 के पास आ गया दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम पॉइंटर टू कांस्टेंट बना रहे हैं, कांस्टेंट एस्ट्रिक्स P3 इक्वल टू एम्परसेंड ए। अभी अपन ने क्या किया, P3 बनाया जो एक पॉइंटर है, लेकिन इट इज ए पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। देखिए वर्ड्स का ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कांस्टेंट पॉइंटर, पॉइंटर टू ए कांस्टेंट, ये दोनों फर्क है, ये फर्क है। कांस्टेंट पॉइंटर बोलने से एक बार जो एड्रेस पॉइंटर P2 के पास आ गया वो फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन पॉइंटर टू अ कांस्टेंट बोल रहा है, इससे मतलब P3 जो है इट इज ए पॉइंटर टू अ कांस्टेंट, मतलब P3 जहां पॉइंट कर रहा है उस जगह को P3 चेंज नहीं कर सकता। एक सेकंड फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे P3 जहां पॉइंट कर रहा है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। P3 जहां पॉइंट कर रहा है, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस आई कैन नॉट चेंज। एस्ट्रिक्स P3 का क्या मतलब हुआ, वैल्यू एट एड्रेस निकालो, उस वैल्यू एट एड्रेस को मैं चेंज करना चाहता हूँ, 100 करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता बिकॉज P3 इज ए पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। अब देखिए मैं कंपाइल करूंगा, इसमें रहा है, ठीक। सो वी हैव एनकाउंटर्ड एन एरर, कैन नॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। देखिए कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है एरर, P3 के ऊपर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। दिस इज द हाईलाइटिंग डन, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो जब हम पॉइंटर टू अ कांस्टेंट बनाते हैं तो पॉइंटर का हेल्प लेके डी रेफरेंस करके हम नया वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये दोनों का फर्क आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप फिर से मैं एक चीज एक और करके दिखा रहा हूँ कि एस्ट्रिक्स ऑफ P2 इक्वल टू 100 में कर सकता हूँ, इससे ए का वैल्यू 100 हो जाएगा, दिस इज वैलिड। हम कंपाइल, एरर नहीं आएगा, नो एरर, देखिए कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। वार्निंग आ रहा है, वार्निंग क्यों आ रहा है, क्योंकि हम P2 और P3 के वैल्यू को यूज नहीं कर रहे, P1 के वैल्यू को यूज नहीं कर रहे हैं, उसका वार्निंग आ रहा है, खैर उसको मत देखिए, एरर नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो लिखे हम लोग ने ये वैलिड स्टेटमेंट है बिकॉज P2 is a constant pointer, it can change the value at address, it can change the value at address, it can change the value at address, ठीक है। it can change it, ठीक है, but it cannot get a new address, it cannot acquire a new address, उसके अंदर एक नया एड्रेस नहीं आ सकता, वो जो पुराना एड्रेस था ए का वो फिक्स हो गया उसके लिए। कांस्टेंट पॉइंटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉइंटर, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट पॉइंटर बोलेंगे, ठीक। P3 क्या है, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट है P3। तो पॉइंटर टू अ कांस्टेंट होने से क्या होगा, यूजिंग P3, यूजिंग P3 we cannot modify value at address, value at address, सर ठीक है। हाँ इसका डिफरेंस, हाँ बताइए। सर सर भेनू डिस्कनेक्ट हो गया सर, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। एक बार उसका एक्सेप्ट कर लीजिए। एक सेकंड, अभी हो गया एडमिट, सब लोग ऑटोमेटिकली एडमिट हो रहे हैं वैसे इसमें, हो गया ना, दिक्कत तो नहीं आ रही,
चलिए, नहीं सर अभी तो नहीं है वो एडमिट हो गया है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके। चलिए, सो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि देखिए, तो जब हम पॉइंटर टू कांस्टेंट बनाते हैं, पॉइंटर टू कांस्टेंट P3 है, देखिए P3 इज पॉइंटर टू कांस्टेंट। जब हम पॉइंटर टू कांस्टेंट बनाते हैं तो यूजिंग P3 वी कैन नॉट मॉडिफाई वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, वी कैन व्यू बट वी कैन नॉट मॉडिफाई। याद रखिएगा, व्यू कर सकते हैं, मतलब मैं सी आउट लिख सकता हूँ, सी आउट एस्ट्रिक्स पे, ये हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए कंपाइल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इज नो एरर। ठीक है, एरर कहाँ गया, सॉरी, P3। ठीक है, P3 को हम जो है व्यू कर सकते हैं, यूजिंग P3 वी कैन व्यू वैल्यू एट एड्रेस बट वी कैन नॉट मॉडिफाई। ठीक है, वार्निंग है, P1 इज असाइंड वैल्यू दैट नेवर बीन यूज्ड, कोई एरर नहीं है। ठीक है, सो वी कैन व्यू द वैल्यू, वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू, बट P3 के अंदर हम एक नया एड्रेस दे सकते हैं, हम एड्रेस ऑफ B इसको दे सकते हैं, इज ए वैलिड स्टेटमेंट। कंपाइल करेंगे, देखिए नो एरर, इज नो एरर। ठीक है, सो ये डिफरेंस को ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट पॉइंटर होने से क्या प्रॉपर्टीज दिखती हैं एंड पॉइंटर टू कांस्टेंट होने से क्या प्रॉपर्टीज दिखती हैं। ठीक है, सो जब हम पॉइंटर टू कांस्टेंट बना रहे हैं तो वी कैन नॉट मॉडिफाई यूजिंग दैट पॉइंटर। ठीक है, वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू एट एड्रेस यूजिंग द पॉइंटर। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो ये कोड में कॉपी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये विंडो अलग हो गया है, तो आप लोग जो है इस कोड को ध्यान रखिएगा, और इसको अगर आप लोग ने टाइप कर लिया तो सेव करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो कांस्टेंट पॉइंटर एंड पॉइंटर टू कांस्टेंट का आइडिया क्लियर है? किसी को डाउट है कि इसमें? एनी डाउट्स? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। कांस्टेंट पॉइंटर एंड पॉइंटर टू कांस्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक, तो दोनों में एक कॉमन चीज याद रखिएगा, जब भी कांस्टेंट्स बनाते हैं असाइनमेंट जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम कांस्टेंट बना रहे हैं उसको असाइन कर रहे हैं P2 में, और P3 में भी जब बना रहे हैं कांस्टेंट तो उसको भी असाइनमेंट दे रहे हैं। तो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट दोनों एक साथ होता है। इक्वल टू साइन लग गया मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डिक्लेरेशन पार्ट भी है, लेफ्ट हैंड साइड में डिक्लेरेशन पार्ट है, राइट हैंड साइड में असाइनमेंट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जरूरी होता है, इनिशियलाइजेशन इज नेसेसरी व्हेन वी आर यूजिंग कांस्टेंट्स, है ना। यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन जरूरी है। यहाँ पे भी कांस्टेंट पॉइंटर या पॉइंटर टू कांस्टेंट बनाएंगे तो वहाँ पे इनिशियलाइजेशन इज नेसेसरी। इनिशियलाइजेशन मींस डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट बोथ इन द सेम स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन भी साथ साथ हो रहा है, उसके साथ साथ असाइनमेंट भी हो रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर एक साथ हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, एंड इट हैज टू बी डन व्हाइल वी आर यूजिंग कांस्टेंट्स। तो होपफुली आप लोग को आइडिया समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।